तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर यूट्यूब सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूट्यूब जर्नलिस्टों को देखते ही चेहरे पर जोर से थप्पड़ रसीद करना चाहिए, ऐसा मन में आता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूट्यूब सहाफ़ी अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सच्चा सहाफ़त करने के बजाय ये लोग गलत मालूमात देकर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि मीडिया का काम अवामी मसाइल को उजागर करना है, न कि ज़ाती हमले और अफवाहें फैलाना। रेवंत रेड्डी के इन बयानात पर यूट्यूब जर्नलिस्टों में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। कई मीडिया तंजीमों ने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए एतराज़ जताया है। रेवंत रेड्डी के ये अल्फाज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। सियासी हलकों में भी रेवंत रेड्डी के रवैये पर बहस और मुबाहिसे शुरू हो गए हैं। यूट्यूब जर्नलिस्ट्स ने रेवंत रेड्डी से अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। పత్రికా సమావేశాలకు కూడా ఎవరు పడితే వాడు లోపలికి వచ్చేసి మీకంటే ముందుగాల ముందల కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. ఇంతకుముందు నేను చూస్తున్నాను, ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం నేను ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైనప్పుడు పత్రికా సమావేశాలు పెడితే సీనియర్ రాగానే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఏ పేపర్ అయినా ఉండని, లేకపోతే ఏ టీవీ అయినా ఉండని, జూనియర్స్ ఎవరైనా ఉంటే సీనియర్స్ వస్తే ముందల సీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా లేచి వాళ్ళకి సీట్ ఇచ్చి వెనక్కి కూర్చునే వాళ్ళు. ఒకవేళ సీట్ లేకపోతే పక్కకు నించొని నోట్ చేసుకునేది. ఒక బాధ్యత, ఒక గౌరవం, ఒక మర్యాద. వాళ్ళ యాజమాన్యాలు ఎవరున్నా జర్నలిస్టుని ఒక గౌరవించుకునే పరిస్థితి ఉండే. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నది. వాడు ఖాళీగా ఉంటాడు కాబట్టి 3 గంటల ముందే వచ్చి ముందల కుర్చీలో కూర్చుంటాడు, కాలు మీద కాలు వేసుకొని. వాడికి వచ్చిన సీనియర్ జర్నలిస్టు వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం జర్నలిజంలో కలిపినరు. వాళ్ళు సిన్సియర్గా ప్రజా సమస్యల్ని విశ్లేషించడానికి, పరిశోధనలు చేయడానికి, వాళ్ళ జీవితాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఫనంగా పెట్టి, కుటుంబాలను కూడా ఫనంగా పెట్టి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడనో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రోజుల కొద్దీ ప్రజలలో మమేకమై ఆ సమస్యల్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు రాసిందన్న సంగతి, పాలకులు చేస్తున్న తప్పులను పట్టుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమించి విశ్లేషించి, మన ప్రాంతంలో జరిగిన విద్యుత్ ఉద్యమాల వెనుక ఇంత కఠోరమైన దీక్ష జర్నలిస్టులది ఉన్నది. సరళీకృత విధానాలు వచ్చినప్పుడు ఆ సరళీకృత విధానాలు దేశ సంపదను పెట్టుబడిదారులు ఏ విధంగా కొల్లగొడతారని ఆనాడు విశ్లేషించిన జర్నలిస్టులకు ఈరోజు వచ్చినోనికి వాళ్ళ గురించి ఓనమాలు కూడా తెలియని పరిస్థితి. వాళ్ళు వస్తే కనీసం కూర్చోమని చెప్పాల్సిన కనీస మర్యాద పాటించాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా కోల్పోయిన వాళ్ళు ఈరోజు వచ్చి మేము పత్రికా సమావేశాలు పెట్టినప్పుడు ముందల వరుసలు కూర్చోవడం కూడా ధిక్కారంగా, మనమేదో లోకు అయినట్టు వాడేదో మన మీద పెత్తనాన్ని చెలాయించడానికి వచ్చినట్టు మన కళ్ళకు చూస్తుంటాడు. ఇంకా నువ్వు నమస్కారం పెడతలేవు, నన్ను చూసి తల ఉంచుకుంటలేవేందని. నాకైతే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది దిగిపోయి పల్ల చెంపలు వలగొట్టాలని. కానీ పరిస్థితులు, హోదా అడ్డం వస్తుంటాయి. గతంలో జర్నలిస్టులను చూస్తే మర్యాద ఇచ్చి పలకరించి ప్రెస్ మీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళతో 10 నిమిషాలు మాట్లాడి మేము చెప్పిన దాంట్లో ఉన్న లోపాలు. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ कसुम वेंकटेश्वरलू की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद कर दिया। कसुम वेंकटेश्वरलू ने रेवंत रेड्डी के रिजर्वेशन से मुताल्लिक तबसरों पर एतराज़ करते हुए नंपली कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। रेवंत रेड्डी ने इस मामले में हाई कोर्ट में क्वाश पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी की क्वाश पिटीशन को कबूल करते हुए केस को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही रेवंत रेड्डी को कानूनी तौर पर बड़ी राहत नसीब हुई है। कसुम वेंकटेश्वरलू का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। कसुम वेंकटेश्वरलू ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिजर्वेशन पर दिए गए बयानात को बुनियाद बनाकर मुकदमा दायर किया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस केस में रेवंत रेड्डी को फ़िलहाल किसी कानूनी चारा जोई का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी के हक में ये अदालती फैसला सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। KTR और जगदीश रेड्डी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तीनमार मल्ला की जानिब से दायर करदा फर्जी वीडियो केस को तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तीनमार मल्ला ने ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के दौरान अपने खिलाफ फर्जी वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया था। इस शिकायत पर पुलिस ने KTR और जगदीश रेड्डी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया था। हाई कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इन सबूतों के फुकदान के सबब KTR और जगदीश रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज कर
दिया गया। अदालत ने कहा कि इल्जामात महज सियासी मकसद से लगाए गए मालूम हो रहे हैं। इस फैसले के बाद KTR और जगदीश रेड्डी को कानूनी राहत हासिल हुई है। BRS हामियों ने हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकद्दम किया है। तीनमार मल्ला ने कहा कि वो इस मामले में मजीद कानूनी कार्रवाई पर गौर करेंगे। BJP MPs अगर इस्तीफा दें तो क्या मरकज बनिकचरला प्रोजेक्ट मामले में मुदाखलत नहीं करेगा? कांग्रेस MPs अगर पार्लियामेंट को मफलूज कर दें तो क्या बनिकचरला प्रोजेक्ट रोक नहीं सकता? तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने कहा कि 16 MPs की खामोशी की वजह से ही चंद्राबाबू बनिकचरला प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि जब हम पानी के लिए अपने हुकूक के लिए सवाल उठाते हैं तो हमें इलाकाई मुनाफरत भड़काने वाले कहते हैं। अगर हम अपने अवाम की जिंदगियों और मुस्तकबिल के लिए बात ना करें तो ये गलत है। बात करना हमारा हक है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने भी अपनी तरह से बात की, मगर हम जो तेलंगाना की हुसूलाबियां कराने वाली पार्टी हैं जरूर सवाल उठाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि चंद्राबाबू के वालिद ने भी कर्नाटक के अलमिटी प्रोजेक्ट पर एतराज किया था। इसी तरह महाराष्ट्र के बाबुली प्रोजेक्ट के खिलाफ भी चंद्राबाबू ने आवाज उठाई थी। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या तब भी इसे इलाकाई नफरत भड़काने के मुतरादिफ कहा गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के मुफादात के लिए BRS हमेशा आवाज उठाती रहेगी। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇచ్చి పార్లమెంట్ స్తంభింపజేస్తే కడతారా? లేదు 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు మా తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది మేము రాజీనామా చేస్తామంటే దెబ్బకు దిగిరాదా ఢిల్లీ? ఇవాళ ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల్లో ఢిల్లీ ఉంది? ఎంపీలను చూసుకొనే కదా. మరి మన ఎంపీలు నిర్ణయించుకోవాలి. మిమ్మల్ని ఎంపీలు చేసింది తెలంగాణ హక్కులు కాలరాయడానికా, తెలంగాణ హక్కులు కాపాడడానికా? తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలు ఆలోచించాలి. ఇలా ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు. మనం 8 కాంగ్రెస్ని గెలిపిస్తేమి, 8 బీజేపీని గెలిస్తేమి, ఈ 16 మంది మౌనం వహించబట్టే చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్టు అన్యాయంగా కడుతుందనే విషయం ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి అర్థమవుతా ఉంది. సో CWCని ఒప్పిస్తానే ధైర్యం ఎక్కడిది మీకు? ఎంపీలు నీ చేతులున్నారు కనుక, ఢిల్లీ నీ చేతులు ఉంది కనుక, కేంద్ర ప్రభుత్వం నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంది కనుక నేను ఒప్పిస్తా అనుకుంటున్నావు. కానీ మాకు కూడా రాజ్యాంగం ఉన్నది. ఈ దేశానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉన్నది. ఈ దేశంలో ఒక సుప్రీంకోర్టు ఉన్నది. హక్కులను కాపాడడానికి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మీద మాకు నమ్మకం ఉన్నది. అవసరమైతే సర్వోన్నత న్యాయస్థానం पार्टी तब्दील करने वाले MLEs में अगर शर्म हाक बाकी है तो फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। BRS के रहनुमा तकियल्लापल्ली रविंदर राव ने उन MLEs पर शदीद बिरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतने लोग नफरत कर रहे हैं फिर भी उन ओहदों पर बरकरार रहने की ख्वाहिश समझ से बाहर है अवाम ने जो। उन्होंने कहा कि उहदे गुरूर पार्टी वफादारी। तकियल्लापल्ली रविंदर राव ने कहा कि ये अमल जमहूरी उसूलों की तौहीन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवाम उन गद्दारों को जल्द ही सबक सिखाएंगे। MLEs को चाहिए कि वो अवाम के सामने वाबदे हों। पार्टी बदलने वालों के खिलाफ अवामी इंदविलन की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। సిగ్గు లజ్జ ఉంటే ఈ శాసనసభ్యులు తక్షణమే రాజీనామా చేయండి. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం ఉందా? BRS పార్టీ బలం ఉందా? మీ ప్రజలు ఏ పార్టీ అండ ఉన్నారు? వ్యక్తిగతంగా మీరు ఏ పార్టీ గెలిచారు? నిజంగా మీ యొక్క పేరు ప్రతిష్టలతో మీరు గెలిచినట్లయితే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన పదవిని మరి త్యజించి ఎన్నికలకు పోవాలి కదా. ఎందుకు వేలాడుతున్నారు? ఇన్ని రకాల చర్చల మధ్యన ఇంతటి అసవ్యాన్ని యావత్ తెలంగాణ సమాజం వ్యక్తీకరిస్తున్న సందర్భంగా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇలా తలంటిన సందర్భంలో కూడా गढ़वाल जिला के एलमपुर चौराहे पर ख्वातीन शक्ति सिंघुल्लू के जश्न के दौरान BRS MLA विजय ने कांग्रेस लीडरों का मुंह बंद कर दिया। इस तकरीब में वजीर वाकिटी सिरी हरी की मौजूदगी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मार्केट यार्ड चेयरमैन डोडपा ने इल्जाम लगाया कि BRS हुकूमत के दौर में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। सीन बयान पर BRS MLA विजय ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। विजय ने कहा कि कांग्रेस लीडर राशन कार्ड के नाम पर अवाम से पैसे वसूल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन मिट्टी के कारोबार में बदउनवानियों में मुलव्वस हैं। BRS MLA ने वजीर के सामने ही कांग्रेस कायदीन को सवालात का जवाब न देने पर मजबूर कर दिया। इस वाकया के बाद प्रोग्राम में कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया। बाद अज़ां BRS कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ये वाकया मकामी सियासी हलकों में बहस और मुबाहिसे का मौजू बन गया है। पहले
వేయి వచ్చింది సార్. ఆ చెక్ కూడా మీ చేతిలో మీదుగా ఇవ్వవలసింది. అదేవిధంగా వాళ్ళకు 28 మందికి 13 బ్యాంకు ఉన్నారు సార్. ఈ సంబరాలనే 2 రోజులు అందరూ కూడా దయచేసి స్థానిక ఈ నల్లపూరు నియోజకవర్గ ఎంపీలు ఎంఆర్ఓ గారు తర్వాత మండల సభ్యులు అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇందులో మీ ఉన్నకాలంలో తెలుసుకున్నా కదా ఎక్కడున్నా కమిషన్ ఈ అల్లతో పాలనలో ఈసీగా మొదలు ఎక్కడ అవసరమైంది ఈ పాలనలో ఈ అందరూ ప్రయోజనము తోలు కలిగటము ఈ తగిన అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. అందరినీ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. గౌరవనీయులు बंजारा हिल्स के सेवालाल बंजारा भून में राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम के दौरान वजीर पवन्नम प्रभाकर और BRSMLC दासूजो शरोएना के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प हुई। पवन्नम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS हुकूमत ने एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया। दासूजो शरोएना ने इस बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि BRS हुकूमत के दौर में 6 लाख राशन कार्ड्स तकसीम किए गए। दासूजो के जवाब पर पवन्नम प्रभाकर शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए तल्ख अल्फाज में जवाबी हमला किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ देर तक लफ्जी तकरार जारी रही, जिससे माहौल कशीदा हो गया। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद अवाम और ओहदेदार हैरान रह गए। बाद अज़ां दीगर सीनियर कायदीन ने मुदाखलत करते हुए दोनों रहनुमाओं को खामोश कराया। ये वाकया सियासी हलकों में मौजूम बहस बन गया है। पवन्नम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के मसाइल पर सवाल उठाना उनका हक है। दासूजो शरोएना ने भी वाज़ेह किया कि BRS हुकूमत ने हमेशा अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు కూర్చోండి. సభ నిర్వహణ మంత్రి చెప్తారు, ఎవరు మాట్లాడతారు నేను చెప్తా. కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోమని చెప్తాడు. సభ ఎప్పుడు అన్ని సమాజ రాజకీయం పనికిరాదు. కూర్చోండి అనే చెప్తా. మంచిగా చెప్పినప్పుడు అలా చేస్తున్నాడు అడగాలి. కావాల్సుకొని రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ జరుగుతుంటే అని మీరు కూర్చోండి. దయచేసి దాసరి గారు కూర్చోండి, కార్పొరేటర్ గారు కూర్చోండి. कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट इज्जत माब चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी के हवाले कर दी गई है। ये रिपोर्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा आतम कुमार रेड्डी और पवंगोल्ती श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में पेश की गई। रियासती हुकूमत ने इस रिपोर्ट का बारीक बीनी से मुताला करने और जामे खुलासा तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में अवपाशी महकमा, महकमा कानून और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गेड के सेक्रेटरीज को रुकन बनाया गया है। ये कमेटी रिपोर्ट के तमाम पहलुओं का गहराई से जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो अपनी तफसीली रिपोर्ट 4 अगस्त को रियासती काबीना के सामने पेश करे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की माली बेज़ाब्तगियों और तकनीकी खामियों पर कमीशन ने तहकीक की है। रियासती हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में मुस्तकबिल के इक़दामात
का फैसला करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रिपोर्ट पर मुकम्मल शफाफियत के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट तेलंगाना की सियासी और अवामी हलकों में बड़ी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बंजारा हिल्स में एक बार डांसर ने अपने शौहर के साथ मिलकर पैसों के लालच में एक नौजवान का अगवा कर लिया। खातून ने नौजवान को पब में इंजॉय करने के बहाने बुलाया और बाद में शौहर के साथ मिलकर अगवा कर लिया। नौजवान शराब के नशे में था। इसी दौरान इसकी बरहना वीडियोज बनाकर पैसों के लिए इसे धमकियां दी गईं। अगवा शुदा नौजवान एक ज्वेलरी शॉप में मुलाजिम होने की वजह से इस पर पहले से ही स्कीम तैयार की गई थी। दोनों मियां बीवी ने नौजवान से बड़ी रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया था। नौजवान ने होशियारी से फरार होकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बार डांसर, इसके शौहर और उनके साथ मिले मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतासिरा नौजवान के बयान की बुनियाद पर केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाकया मकामी अवाम और कारोबारी हलकों में सनसनी फैला रहा है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ मजीद मुजरमाना रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश बीजेपी एमएलए इदनारायण रेड्डी ने चंद्राबाबू के दौरे के दौरान अवाम को करीब आने न देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने टीडीपी वजीर साविता से सवाल किया कि अवाम के पास आकर उन्हें ही दूर रखने का मतलब क्या है। अवाम को दूर रखने के पीछे आपका क्या मकसद है, ये समझ में नहीं आ रहा। इदनारायण रेड्डी ने कहा। वजीर साविता ने जवाब दिया कि हमने किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं लगाएं। ताहम इदनारायण रेड्डी ने कहा कि अगर पाबंदियां न होतीं तो मैं ये बात ही क्यों करता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम को चंद्राबाबू के करीब आने से रोकने की नीयत से ही इंतजामात किए जा रहे हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि अवामी कायदीन को अवाम से दूर करना मुनासिब अमल नहीं। इस मामले पर चंद्राबाबू के काफिले में शामिल कारकुनों के दरमियान भी चामी गोइयां शुरू हो गईं। इदनारायण रेड्डी का बयान सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। वजीर साविता ने इस तनाज़ा को खत्म करने की कोशिश करते हुए मामले को हल्का करने की बात कही। ఇది ఇక్కడ రిస్ట్రిక్టెడ్ బ్లాస్టింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధానం వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది కానీ ప్రజలకు స్వేచ్ఛగా వాళ్ళకు వచ్చిన వదలాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు రావడం అదృష్టం కాబట్టి ఆయన ఏదన్నా అడిగేదానికోసమో ఆయన స్పీచ్ ఇవ్వడానికి కోసమో రేపు భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పడానికి. కాబట్టి నేను మంత్రి గారిని ఇద్దరిని కోరేది ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాదు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు. రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టలేదు. మనమే పరదాలు కొట్టుకున్నామా లేకపోతే కాదు ఆ పండాలు చదువుకే పెట్టారు కదా. అంటే ఇక్కడ లిమిటెడ్ కదా. ఎందుకు మనం పబ్లిక్ మీటింగ్ మీటింగ్ కాకపోయినా ప్రజలకు స్వేచ్ఛా వాతావరణంలో ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు మంత్రులు వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి అందులో స్వేచ్ఛగా పరిగెత్తాలి పరిస్థితి. గతం లేదు ఇట్లా అంత సదాంపై మేము స్వయంగా నేను 4వసారి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన, నేను కూడా మంత్రిగా పనిచేసిన. నేను పరిస్థితులన్నీ తెలుసు. ఇక్కడ ఈ దరిద్రమైన పాలన పోయింది, ఒరిజినల్ పాలన వచ్చింది. కాబట్టి దీనికి మన ఆలోచన ప్రకారం వాళ్ళందరినీ రేపు స్వేచ్ఛగా వదిలేదానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా పరిగెత్తేయాలని మీ అందరి తరఫున 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान जौहरी ने कर दिया है। नंदीमोरी बालाकृष्णन की फिल्म उबिगो अंत कैसरी को साल 2023 की बेहतरीन तेलुगु फिल्म का कौमी एजाज हासिल हुआ है। जौहरी ने बताया कि मुख्तलिफ जुबानों की फिल्मों का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद उबिगो अंत कैसरी को बेहतरीन तेलुगु फिल्म के तौर पर मुंतखब किया गया। फिल्म हनुमान को बेहतरीन एक्शन डायरेक्शन के जुमरे में नेशनल अवार्ड दिया गया है। बेहतरीन नगमा निगार लिरिक्सट का अवार्ड तेलुगु फिल्म बालगुम को हासिल हुआ है। फिल्म बालगुम का गाना ओराव प्ले ताराओ और जो किसरुला शया में तहरीर किया, इस गाने को बेहतरीन नगमा निगारी का अवार्ड मिला है। तेलुगु फिल्म हनुमान को बेहतरीन कोरियोग्राफी के जुमरे में भी कौमी एजाज हासिल हुआ। जौहरी ने ऐलान किया कि मजमूई तौर पर 15 जुमरों में इनामात का ऐलान किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नेशनल अवार्ड्स बड़े फखर की बात साबित हुए हैं। फिल्मी हलकों में नंदमोरी बालाकृष्णा की फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने पर खुशी का माहौल है। मिहापुर के गोपाल नगर इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। ग्लोबल एज स्कूल की बस ने बाइक पर जा रहे लैब टेक्नीशियन नागर राजू को टुक्कर मार दी। नागर राजू खून के सैंपल्स लेकर बाइक पर जा रहे थे। तेज रफ्तार बस की जोरदार टुक्कर से नागर राजू मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसा इतना शदीद था कि नागर राजू को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे की वीडियो एक दूसरे गाड़ी की डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने डैश कैम फुटेज की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया है। मुलव्वस बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने जाए हादसा पर मुआयना करते हुए शवाहिद इकट्ठे की। यह हादसा मकामी अवाम में अफसोस और गम व गुस्सा का सबब बना है। सूर्यापेट जिला के मिलिलचरोव मंडल हेडक्वार्टर में एक मुअम्मर खातून की हालतजार ने सबको रुला दिया। ये ज़ईफ खातून जो चलने फिरने से माजूर है, पेंशन हासिल करने के लिए कुर्सी के सहारे कदम बा कदम जिदोजहद कर रही है। खातून की ये दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जो हर देखने वाले की आंखों में आंसू ला रही है। जिंदगी के इस कठिन मरहले में भी पेंशन के लिए दर दर भटकना इस निज़ाम की नाकामी को जाहिर करता है। मज़कूरा ज़ईफ खातून को हुक्काम तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए शदीद मशक्कत करनी पड़ी। अवामी हलकों में इस वीडियो पर शदीद गुस्सा और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की फलाही स्कीमें उन मुस्तहिक अफराद तक कब पहुंचेंगी। मकामी अवाम ने मुतालबा किया कि हुक्काम फौरी तौर पर इस खातून को घर बैठे पेंशन फराहम करें। सोशल मीडिया सारिफीन ने ज़ईफ खातून की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। ये वीडियो हुकूमत की फलाही स्कीमों पर सवालिया निशान बनकर उभरी है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। नालगंदा जिला से ताल्लुक रखने वाले एक कांग्रेस लीडर मुर्गी के अंडों की सप्लाई टेंडर के लिए बड़े पैमाने पर सिफारिशें कर रहे हैं। रियासत के आंगनवाड़ी मराकज, गोरकला स्कूलों, कस्तूरबा स्कूलों और सोशल वेलफेयर स्कूलों में अंडे फराहम करने के मुआहदे के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि नालगंदा के एक नौजवान मुंतखब MP और एक सीनियर कांग्रेस लीडर के भाई ने ये टेंडर दिलवाने के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। ये कांग्रेस लीडर जो गुज़िश्ता इंतखाबात में टिकट के ख्वाहिशमंद थे, टिकट न मिलने पर रेवंत रेड्डी और जिला के आला कायदीन से कारोबारी फायदे के लिए मदद का वदा हासिल किए थे। अब इस लीडर को टेंडर दिलवाने के लिए नौजवान MP और एक सीनियर लीडर का भाई मैदान में उतरे हैं। ये दोनों सचिवालिया के अतराफ चक्कर लगाकर आला उहदेदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि टेंडर उन्हें ही दिया जाए। दूसरी तरफ दीगर पोल्ट्री कारोबारी अफराद ने इस पर शदीद एतराज़ किया है। उनका कहना है कि अगर टेंडर कवायद को बदल कर दिया गया तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मुतासिरा कारोबारी अफराद ने कानूनी जंग छेड़ने की भी धमकी दी है। ये मामला नालगंदा जिला में सियासी और कारोबारी हलकों में जबरदस्त बहस और मुबाहिसे का मौजू बन चुका है। नागार्जुना सागर डैम की सिक्योरिटी को नजरअंदाज करते हुए हुक्काम मनमानी तरीके से डैम पर निजी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दे रहे हैं। डैम के ऊपर जाने के लिए सिर्फ सियासी और सरकारी अफसरान की सिफारिश पर ही इजाजत दी जा रही है। आम सयाहों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर चंद अफराद को इजाजत देना और बाकियों को रोकने पर अवाम में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। डैम पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से आम सयाह तल्ख कलामी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि सिक्योरिटी उसूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, न कि सिफारिश वालों के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग। ये सूरत हाल मकामी सियाहत को भी मुतासिर कर रही है, क्योंकि लोग खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। हुक्काम की इस जानिबदाराना रवैये पर मकामी अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई समाजी तंजीमें इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रही है। हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि डैम की सिक्योरिटी पर सख्ती से अमल किया जाए और अवाम के साथ यकसा सलूक बढ़ता जाए। వీడియోలో పెట్టాలి డబ్బులు తీసుకొని పంపిస్తున్నారని
हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। मैं ये बात मुकम्मल सबूतों के साथ कह रहा हूं। जैसे ही हम ये सबूत अवाम के सामने रखेंगे, पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि वोट चोरी करवाने में इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है। ये वोट चोरी किसके लिए हो रही है? बीजेपी के लिए की जा रही है। हमें मध्य प्रदेश लोकसभा इंतखाबात और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भी शक हुआ था। इलेक्शन कमीशन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने अपनी जानिब से तहकीक करवाई। इस तहकीक में 6 माह का वक्त लगा और जो हकायक हमारे सामने आए हैं वो एटम बम जैसे हैं। इलेक्शन कमीशन में जो लोग वोट चोरी में मुलव्वस हैं, हम उन्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा गद्दारी के जुमरे में आता है। आप चाहे कहीं भी हो, रिटायर क्यों ना हो जाएं, हम आपको तलाश करके अवाम के सामने लाएंगे। ये बात अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो,